important basic topics, that is the reflection of light. When we talk about the reflections, so first of all, the word we need to understood what you mean by the reflection. Reflection, okay. Reflection means we can say that when the light or anything falls on a planes and it comes back in the another medium or same medium, whatever, that is a reflection. Today we will understood what you mean by the reflection of light. Student, as you know that first of all we will discussed in the previous classes as was a spherical mirror. So if you take any plane mirror like this, okay, and paint the lower surface of this mirror like A and B, okay, that is a plane mirror, and when a ray of the light falls on this plane, okay, at this point, and just draw an imaginary line on this point, that will be the normal. It is known as the normal. And after few times, as we know that जो इसका नीचे का हिस्सा है, that is the painted portion. So the ray of the light will falls there, and after the it will be reflect back in the situations. तो जब भी लाइट की कोई भी रेस आकर के किसी ऐसे स्मूथ प्लेन पे पड़ती है और पड़ने के बाद में वो लाइट की रेस सेम मीडियम में वापस हो जाती है. सो द फिनोमिना in which a ray of the light falls on a plane medium and after falling it will come back in the same medium, and this phenomena of light is known as the reflection of light. Well students, this is an imaginary line and which is perpendicular to the plane, and that is known as a normal. This line is known as a normal, and ये जो light की rays आ रही होती है, that is the incident ray. It is इंसिडेंट रे, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट की रेस बाहर जाती है, दैट इज अ रिफ्लेक्टेड रे. रिफ्लेक्टेड रे, दैट इज द रिफ्लेक्टेड रे. So in short we can say that the reflection of the light is a phenomena of light in a plane medium. We can say that when a ray of the light falls on a smooth plane, then it comes back in the same medium. This phenomena is known as a reflection of the light. As we know that at which points the light ray of the light falls at this plane is known as the normal. Okay, this is a imaginary lines. I am again saying this. And जो रिफ्लेक्शन होता है वो आपका दो टाइप्स का होता है. एक तो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन. ये बेस्ड करता है द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस. इफ योर सरफेस विल बी रफ देन यू विल से दैट द रिफ्लेक्शन इज इरेगुलर, एंड अगर आपका स्मूथ होगा तो वहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होगा वो रेगुलर रिफ्लेक्शन के कैटेगरीज में आता है. Well, come to the point, and as we are seeing here, this is normal and this incident ray. एक यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है बिटवीन दिस, दैट एंगल इज नोन एज अ एंगल आई, एंड दूसरा एक एंगल है रिफ्लेक्टेड रे जो कि फॉर्म हो रहा है बिटवीन दी नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे. इस एंगल को कहेंगे इंसिडेंट एंगल. ओके, दैट इज एंगल आई एंड दैट इज एंगल आर. एंगल आई इज फॉर्म्स बिटवीन दी इंसिडेंट रे एंड दी नॉर्मल, and angle R formed between the normal as well as the reflected ray. Okay students, जैसा कि स्फेरिकल मिरर्स में हम लोगों ने इसके पहले सीखा था, स्फेरिकल मिरर्स दैट इज अ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स. फिर वहाँ पे कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए जो रे डायग्राम्स बने हुए थे, उन रे डायग्राम्स के बाद में हम देखते हैं कि लाइट का रिफ्लेक्शन. तो लाइट का रिफ्लेक्शन के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि द रे ऑफ द लाइट falls on a smooth surface or a rough surface, but surface will not be transparent. अगर ये आपका surface transparent हो गया, then that will be the situation of the refraction. And refraction की situation में आप अभी इसके बाद में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्शन के लिए क्या होना चाहिए? एक ऐसा सरफेस जिसका एक नीचे का जो हिस्सा होता है, जो नीचे का उसका एक कोई भी एक हिस्सा, उसको आप पेंट कर दीजिए, एंड उसके ऊपर जब भी कोई लाइट की रेस पड़ती है तो लाइट पड़ने के बाद में चूंकि इसको ये क्रॉस नहीं कर सकती जस्ट बिकॉज दैट नीचे इसका जो हिस्सा है वो कैसा है, वो पेंटेड है या पॉलिश्ड है. सो ये लाइट की रेस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पड़ करके
वापस चली जाती है और इसी फिनोमिना को लाइट का पढ़ना एंड देन इट विल बी कम बैक इन द सेम मीडियम एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट. दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट. सो वेरी few cases arises here. The angle between normal and the incident, that is the angle I, and the angle between normal and reflected ray, that is the angle R. मेन पॉइंट इज दैट ये जो नॉर्मल खींचा जाता है जिस पॉइंट पे पड़ती है ये एक एज इन इमेजिनरी लाइन है. ओके यहाँ पे हमने नॉर्मल एड कर लिया. इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दैट इज द एंगल ऑफ आर. ओके सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वी कैन से दैट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट we will say that when a ray of light fall down on a smooth surface, one part is polished. Okay, when a ray of the light falls down on a smooth surface, जिसका एक हिस्सा कैसा होना चाहिए, polished होना चाहिए. So the ray of light come back in the same medium, is known as reflection of light. Okay students, so this point has been clear that what is the reflection of the light. Reflection of the light simply means that when the ray of the light comes and falls on a point of a smooth surface which is polished in one side, and after fall down it will be come back in the same medium like this, and this phenomenon is known as the reflection of the light. जो लाइट आ रही होती है दैट इज नोन एज अ इंसिडेंट लाइट, और पढ़ने के बाद जो वापस जाती है दैट इज द रिफ्लेक्टेड रेज और द रे ऑफ द रिफ्लेक्शन. यू कैन ऑल्सो से दैट. एंड द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे दैट इज आई, एंड द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे दैट इज द एंगल आर. आगे हम बात करते हैं व्हाट आर द लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन. व्हाट इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? Is the laws of the reflection. As the point cleared, so there is a two very basics and very important laws of the reflections arises from the reflections. One law is that the incident ray, comma, reflected ray, and normal lies in the same medium. सेम मीडियम सेंस इज दैट कि जैसे यहाँ पे इंसिडेंट रे टकरा करके ये ग्लास के नीचे नहीं आती, इट डिडंट कम बैक. ये क्या हुआ, अगर एयर से आई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी कम बैक ऑल्सो इन एयर एंड नॉर्मल इज ऑल्सो लाइज एयर. सो एज यू आर सीइंग दैट कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड इंसिडेंट ऑल थ्री आर लाइन द सेम मीडियम. सो दिस इज द लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन. इसको हम रिफ्लेक्शंस का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं. लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन मीन्स द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल lies in the same point. जो normal, that is a point. Okay, it point is known as a reflected plane. It is known as a reflected plane. Means जहाँ से लाइट पड़ती है और पढ़ करके वापस जाती है इस पॉइंट पे, जो तीनों चीजें लाइक करती है वो एक सेम मीडियम में होती हैं. Second important thing is that, which is the second law also known as the angle between. We will say that the angle between the normal and incident ray is known as angle I. Okay, no need to write, is known as is equal to angle I. Angle इसको हम कहते हैं incident angle is equal to the angle formed between
normal and reflected ray, that is angle R. So in short we can say that angle I is equal to angle R. It is the second law of the reflection. So students, again I will explain it all the things, all the reflection of the light and the laws of the reflection. Very simple words. We can say that there is a smooth plane. At one portion is the polished portions. It is not a transparent medium. Whenever a ray of the light falls on this plane at a point certain, like this is a point P, and we saw that this line will be come back like this, इस तरह से पढ़ के वो वापस जाएगी. And this phenomena of the light is known as the reflection of the light. In short we can say कि जब भी कोई लाइट की रेज किसी स्मूथ प्लेन पे पड़ती है तो पड़ने के बाद में वो उसी रास्ते में वापस चली जाती है, क्योंकि नीचे का हिसाब का पॉलिश्ड होता है. और ये जो फेनोमेना होता है, जो इवेंट्स होता है, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शंस ऑफ द लाइट. जिस पॉइंट पे आपका लाइट पड़ रहा होता है उसको हम बोलते हैं परावर्तक तल. एंड इसी पॉइंट से हम एक लाइन इमेजिनरी खींच देते हैं, उसी लाइन को कहा जाता है दैट इज द नॉर्मल. ओके, जो एंगल फॉर्म होता है इंसिडेंट रे, उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं. एंड जो एंगल फॉर्म होता है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, दैट इज इसको एंगल आर से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड जो भी आपके लॉज बनते हैं रिफ्लेक्शंस के, वो दो लॉज सबसे इंपॉर्टेंट ये होते हैं कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है एंड द नॉर्मल, दीज ऑल थ्री लाइज इन द सेम मीडियम. और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट रूल बनता है द एंगल बिटवीन द नॉर्मल, दैट इज नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे. नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है वो, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज एंगल आर, दोनों की वैल्यूज आपस में बराबर होती हैं. तो ये फिनोमिना होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में. ठीक है, टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हमने अभी आपको बताया कि जो बेसिक हमारा रिफ्लेक्शन होता है वो दो टाइप का होता है. एक तो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग अभी डिस्कस करते हैं, रेगुलर और इरेगुलर. Well students, topic is that regular and irregular reflection. What do you mean by the regular and the irregular reflection? Students, जैसा कि मैंने पहले बताया, रिफ्लेक्शन का सीधा सा मतलब होता है कि लाइट टकरा के उसी मीडियम में वापस हो जाना, दैट इज द रिफ्लेक्शन. एंड हिंदी वी कैन से दैट इज द परावर्तन. रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शंस एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ द पाथ्स एज यू आर सीइंग हियर लाइक दिस, एंड अनदर पेन इज कुछ इस बड़ा स्मूथ नहीं है, वो रफ सरफेस है. यहाँ पे जब भी आपकी लाइट ऐसे आएगी तो ये ऐसे भी जा सकती है. ठीक है, इन दैट केसेस यू वी कैन से दैट अगर नीचे से आनी है, ऐसे कोई लाइट आती है, इधर पड़ी एंड ऐसे कम बैक कर जाएगी. दिस इज द केस ऑफ द इरेगुलर रिफ्लेक्शन. एंड एट अ स्मूथ और अ स्मूथ प्लेन दैट इज फाउंड अ regular reflection. What it is, students? That is a regular reflection. So regular and irregular reflection depends upon the smoothness or the roughness of the plane. अगर आपका प्लेन स्मूथ है तो वहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होगा वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, और अगर आपका प्लेन रफ है तो वहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होगा वो इरेगुलर रिफ्लेक्शंस कहलाता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स, ये तो हुआ आपका रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट. इसी के संदर्भ में जो सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है रिफ्लेक्शंस, एंड अनदर इज दैट रिफ्रैक्शन. आई विल एक्सप्लेन द मेजर डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्शन एंड द रिफ्रैक्शन. इट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, that is the medium is must be transparent like this. सपोजिंगली ये हमारे पास में कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम था
और इधर से एक लाइट आती है, दैट इज द इंसिडेंस रे, एंड इसको जाना कैसे चाहिए था, ऐसे डॉट 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 करके सीधा निकल जाना चाहिए था। बट ये देखा गया कि जो लाइट की रेज इधर से आ रही थी, ये डायरेक्टली सीधे अपने रास्ते में नहीं जाती है, ये क्या करती है, थोड़ा सा अपने रास्ते से बेंड होती हुई निकलती है। एंड जिस पॉइंट पे ये लाइट पड़ रही थी, वहाँ पे मैंने एक इमेजिनरी लाइन खींची, जिसको हमने यहाँ पर भी नॉर्मल बोलना होता है, ठीक है, इट इज़ द नॉर्मल, दैट इज़ द नॉर्मल, ओके। सो इंसिडेंट रे, दैट इज द इंसिडेंट रे, ओके। सो इंसिडेंट रे, नॉर्मल, एंड इट्स अ reflected ray. ओके, सो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे सबसे जो बेसिक डिफरेंस होता है रिफ्रैक्शन के लिए, रिफ्रैक्शन में जो हम मीडियम यूज करते हैं वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं होता है, बट रिफ्रैक्शन के लिए मीडियम ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज़रूरी है। रिफ्रैक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि जब भी कोई भी लाइट आपके एक ऐसे ट्रांसपेरेंट मीडियम में पड़ती है, तो पढ़ने के बाद ये देखा जाता है कि जब ये क्रॉस होती है तो अपने रास्ते से सीधे न जा करके ये थोड़ा सा अपने रास्ते से डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है, अपने एक्चुअल पाथ से थोड़ा सा डिस्टर्ब होती हुई मीडियम को क्रॉस करती हुई निकल जाती है, ठीक है। और ये फिनोमेना जो होता है, दैट फिनोमेना इज नोन एज अ refractions of the light. This is known as the refraction of the light. So in case of the refraction of the light, ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है मीडियम के लिए। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मीडियम है and the phenomena is known as a refraction of light. Refraction of light means, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि जब भी कोई लाइट की रेज एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में पड़ती है, तो ट्रांसपेरेंट मीडियम में पड़ने के बाद में, क्योंकि जो आपका मीडियम है वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। सो ट्रांसपेरेंट मीडियम होने के लिए होने के कारण ये जो लाइट की रेज होती है अपने एक्चुअल पाथ पे न जा करके थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होकर के, थोड़ा सा अब डिस्टर्ब होकर के निकल जाती है। अब ये चीज़ डिपेंड करती है कि ये जो लाइट की रेज है वो नॉर्मल की तरफ आएगी या नॉर्मल से दूर हटेगी। मतलब इसका जो एक्चुअल पाथ ही था, इस एक्चुअल पाथ के इधर आएगी, मीन्स नॉर्मल की तरफ, टुवर्ड्स द नॉर्मल, और इट विल बी फॉर द नॉर्मल। इट डिपेंड्स अपॉन द कि लाइट रेयर टू डेंसर आ रही है या डेंसर टू रेयर आ रही है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स, अगर आपकी रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी, तो जो आपका लाइट का रेज था जो एग्जैक्टली इधर जाना चाहिए था, ये क्या करेगा, थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, और इसके उल्टे केस में क्या होगा, ये नॉर्मल से थोड़ा सा दूर हटेगा। तो इसी जो फिनोमिना होता है, इस फिनोमिना को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट के लिए भी हम आगे देखते हैं कि जो बेसिक आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो, या लॉज कह लीजिए, यहाँ पर भी दो लॉज अराइजेस होते हैं जिनको हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इट इज ऑल्सो नोन एज अ law of the refraction. Okay, so, well students, in case of the laws of the refraction, we can say that laws of the refractions is very simple words. You can say that कि जैसे कि वहाँ पे पहला लॉज हम कहते थे कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड जो नॉर्मल है वो ऑल तीन के तीनों एक सेम मीडियम में लाइक करते हैं। तो यहाँ पर भी फर्स्ट लॉ लगभग सेम ही होता है। इसमें भी हम कह सकते हैं कि इंसिडेंट रे और जो आपका नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही सेम मीडियम में लाइक करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे कोई आपका एक ट्रांसपेरेंट मीडियम था, तो ये जो लाइट है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम को जब उससे बाहर निकल के आएगी, तो ये अगर एयर से गई, एयर टू ग्लास एंड देन फाइनली इट कम्स इन अ एयर, सो एयर एंड नॉर्मल इज ऑल्सो। सो वी कैन से दैट द फर्स्ट लॉ ऑफ द रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो सेज दैट कि इंसिडेंट रेज और नॉर्मल्स और रिफ्लेक्टेड रेज, okay, or incidence rays, you can say, lies in the same medium. And another सबसे important law, the angle between the incident ray and normal, which is known as the angle I, and angle between the reflected ray and normal, that is the angle R, and there is the angle I. The sign of the angle I, you can say that angle, the sign of the incidence angle and the sign of the reflected angle, the ratio of both
will be equal. So you can say that sin I upon sin r is equal to n. N is a constant, and that n is known as okay, sin I upon sin r. Okay, and this phenomenon is known as Snell's law. और इसी को हम सेकंड, जो रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ होता है उसको हम स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, सो ये दो लॉज यहाँ पे भी डिफाइन करते हैं रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन के केस में. जो रिफ्लेक्शन का दूसरा लॉ होता है उसको बोलते हैं साइन आई अपॉन साइन आर, एंड इट इज इक्वल टू द एन, एंड एन इज अ कांस्टेंट. ये डिपेंड करता है, एन की वैल्यू हर एक मटेरियल के लिए सब्स्टिट्यूशनल अलग अलग होती है. This is known as also Snell's law. So students, in short we will discuss about the difference between the reflection and refraction is that कि जब भी हम रिफ्लेक्शन के केस की बात करेंगे, so in case of the reflection it is mandatory that कि जो आपका पाथ होगा रिफ्लेक्शन के लिए वो ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, मींस वो कंप्लीटली ओपेक मीडियम होना चाहिए जिसका एक हिस्सा पॉलिश्ड या किसी चीज़ से पेंट कर दिया जाता है. जबकि रिफ्रैक्शन के केस में क्या होता है, रिफ्रैक्शन में जो आपका मीडियम है वो मीडियम ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है. ये सबसे ज़रूरी और सबसे बेसिक इंपॉर्टेंस होती है. रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि लाइट पड़ती है एंड पड़ने के बाद में उसी मीडियम में कम बैक कर जाती है, जबकि रिफ्रैक्शन में क्या होता है लाइट पड़ने के बाद में उसको क्रॉस करती है, क्योंकि जो मीडियम हम चूज़ करते हैं वो आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, जिसकी वजह से जो रे ऑफ लाइट है वो पड़ने के बाद उस मीडियम से होते हुए बाहर की तरफ निकलती है. लेकिन जब ये उसको क्रॉस करते हुए बाहर की तरफ निकलती है तो ये देखा जाता है कि जो उसका एक्चुअल पाथ है वो अपने एक्चुअल पाथ पे न जाती हुई थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है अपने पाथ से, और इसी फिनोमिना को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट. रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट ये डिपेंड करता है, मैं फिर से बताऊंगा कि ये चीज़ डिपेंड करती है कि ये नॉर्मल की तरफ, जो नॉर्मल मीन्स जिस पॉइंट पे पड़ रही थी वही भी जो इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन प्लेन के खींचते हैं उसी लाइन परपेंडिकुलर लाइन को बेटा नॉर्मल कहते हैं. एंड ये नॉर्मल के ऊपर डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है कि लाइट किस मीडियम से किस मीडियम की तरफ जाएगी. उसमें मैंने जैसा बताया था उसके हिसाब से ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या ये रेज नॉर्मल से दूर हटेगी. सो स्टूडेंट्स, ये आज की क्लास में जो बेसिक डिफरेंस बताया मैंने बिटवीन द रिफ्लेक्शन एंड द बिटवीन द रिफ्रैक्शंस, एंड वी विल कंटिन्यू दिस क्लास ऑन द नेक्स्ट क्लास. एंड इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो रिफ्लेक्शंस की फुल डिटेल में और उसके न्यूमेरिकल्स को हम आगे रिलेट करके बताएंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच.